Bismillahirrahmanirrahim. Last time we studied what is the electromagnetic induction, Faraday's law, Lenz's law. So electromagnetic induction is basically uh, when we change the magnetic flux, so electric field is induced. So that induce the field which is induced is induced electric field. The EMF produced is the induced EMF, and the current that flows as a result of this induced electric field and the induced EMF is called as induced current, and this whole process is called as electromagnetic induction. And this electromagnetic induction has wide applications. Basically this electromagnetic induction was discovered by Faraday's, जिसका हमने last time we discuss के by changing up the basic factor behind the induction was the changing magnetic flux, and that flux depends upon three things. The magnetic flux depends upon magnetic field, area through the field which is passing, and the angle between B and A. So if we change any of these factors, the flux changes. So, and we discuss the induced EMF. Today we will discuss the motional EMF in detail. So, we are just this lecture is just in the continuity of Faraday's law and Lenz's law. And what was the Lenz's law? Just to revise the concept of Lenz's law, Lenz's law basically justifies the negative sign in the Faraday's law. In the Faraday's law, we see that the electromotive force EMF is equal to minus d phi over dt, and the negative sign basically shows that EMF induced or the current induced always opposes the change which causes it. हमेशा जो EMF induce होती है, जो electric field induce होती है, जो current induce होता है या जो magnetic field induce होती है, this always opposes the change which causes it, जिसकी वजह से वो जो अपने cause को ही क्या करती है, oppose करती है. So what is basically the motional EMF? Motional EMF is the voltage produced by the motion of a conductor in a magnetic field. So एक चीज ये थी कि हम magnetic field को change कर रहे थे, हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे and the EMF was induced in the conductor. Other method is if we move the conductor. If we move the conductor, because the magnetic flux change or the electromagnetic induction basically depends upon the relative motion of conductor and the magnetic field. Either you move the magnetic field, आप या मैग्नेट को मूव कर लें या आप कंडक्टर को मूव कर लें. This basically depends upon the relative motion. So the motional EMF is the voltage produced by the motion of a conductor in a magnetic field. As the conductor moves through a uniform magnetic field, the charge carriers inside the conductor also move with the same velocity. We assume that कि हमारे पास ये एक ऐसी बॉडी है, रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और इसके अंदर जो चार्जेस है वो मूव नहीं कर रहे. हमारे पास एक नॉन रिजिड कंडक्टर है जिसमें जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता है, एज द कंडक्टर मूव we see the charges inside the conductor also move, because in a conductor all the charges are in motion. So we are taking a positive charge here. B is into the page, velocity is in the right direction. So if you use the right hand rule, अगर आप right hand rule use करेंगे, so आपके पास you may see velocity is in the right direction, magnetic field is into the page. So into the page can be shown as, so if this is the magnetic field, this एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैं रोल नंबर 6 का चैट बॉक्स में मैसेज आया वो प्रेजेंट. बेटा, आप अगर किसी की अटेंडेंस आती है ना तो वो लेक्चर के बाद बताना, मुझे लेक्चर पढ़ा लेने दो, अटेंडेंस इतना इशू नहीं है, हो जाती है एंड पे, ठीक है, कोई मसला नहीं ओके है, मैम. ठीक है, अभी हम पढ़ लें तो अटेंडेंस एंड पे देख लेते हैं, कोई मसला नहीं. So देखो, B is into the page, so this into the page field is shown by this. So if you put your fingers in the direction of velocity, green vector, and curl them towards the magnetic field, then your thumb will be upward and this will show the magnetic force on this moving charge. So
So as a conductor moves through the uniform magnetic field inside the conductor also move with the same velocity. ये charges भी उसी velocity से क्या करते हैं move करते हैं. So अगर आपके पास इस direction में v है, ये b है, तो ये क्या आएगी magnetic force आएगी. In the simple case where the velocity is perpendicular to the magnetic field, अगर v और b perpendicular हो, अगर v और b perpendicular हो तो हमें ये पता है कि एक चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी. Normally F is equals to so normally we see that F is equals to QVB sine phi. So if the angle between the magnetic field and velocity is 90 degrees, so this force F will be equals to F is equals to QVB. So हमारे पास magnetic force क्या लग रही है, upward लग रही है. अभी देखो अब इसे हम कहते हैं बेसिकली दिस फिनोमेना को वी कैन से दैट. सो आई रिपीट द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, सो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी. सो अब ये है कि हमारे पास इसकी वजह से फील्ड में रखने की वजह से चार्जेस मूव कर रहे हैं और कुछ फोर्स लग रही है. सो हमारे पास वी कैन से कि जो चार्जेस होंगे उनकी स्लाइड मोशन की वजह से अगर आपके पास इस कंडक्टर के अंदर इस तरह से पोल्स क्रिएट हो जाए कि पॉजिटिव चार्ज आपके पास एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाए और नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाए. कंडक्टर में जो मोशन है वो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ इस तरह से हो जाए तो अब आपके पास यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाएगा. अगर पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे एक्यूमुलेट हो गया और नेगेटिव साइन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी. सो इस कंडक्टर के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी इसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. दिस ई इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस फील्ड प्रोड्यूस्ड इज बेसिकली द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप एक कंडक्टर को मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में सो उसके जो प्रेजेंट है चार्जेस उन पर कोई फोर्स एक्सर्ट होगी. उन फोर्सेस की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी आपके पास एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज अकोमुलेट हो जाएगा और एक इंड्यूस्ड फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. इसको हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सब आपके पास ये जो चार्जेस की सेपरेशन है दिस कंटिन्यूज अंटिल द इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड. अब बेसिकली क्या है कि आपके पास अब इस कंडक्टर में दो फोर्सेस एग्जर्ट हो रही है. एक ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन चार्जेस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट हो रही है और एक उस कंडक्टर के आउटसाइड एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट हो रही है. आई रिपीट, व्हेन यू मूव द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड वी सी a magnetic force acts on the conductor. Due to that force we see the charges which are moving will have a slight motion, will have a slight displacement inside the conductor, and positive charge will accumulate on the one side and negative charge will be accumulated on the other side. एक डाइपोल की तरह की फीलिंग, जैसे पोलराइजेशन हो जाती है, वो पोलराइज हो जाएगा कंडक्टर. उस कंडक्टर के पोलराइज होने की वजह से देर विल बी अ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर दी है इनसाइड द कंडक्टर. So now there are two forces acting on the charges. One is the magnetic force which is acting on the charges inside the conductor due to the magnetic field. इस magnetic field की वजह से for example इस positive charge पे
we see a magnetic force F is equals to QVB is acting, and on this electric field, due to this induced electric field, an electric force is being acted. So आपके पास ये जो चार्जेस की सेपरेशन का प्रोसेस है, पोलराइजेशन का प्रोसेस है, ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाती हैं. सो जब तक आपके पास ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है? Q इंटू ई के, और मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है क्यू वी बी के. तो अब आपके पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक पॉजिटिव चार्ज का अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? बैलेंस करेंगी. सो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी में वी विल सी कि ये क्यू और यू क्यू क्या हो जाएंगे? कैंसिल. So E किसके इक्वल आएगा? V into B के. When the electric force balances the magnetic force, the carriers experience no net force and therefore no motion. The electric field strength at equilibrium is E is equal to VB. And the magnetic force on the charge carrier in moving the conductor creates an electric field. So आप ये कहते हैं कि आपके पास अगर एक चार्ज कैरियर को, एक कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं विद v वेलोसिटी, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इफ वी आर मूविंग अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड with velocity v and in the magnetic field b, then E is equals to vb is the velocity which is created in is the electric field which is created inside the conductor. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है, मैं रिपीट करती हूँ इसको, आई रिपीट, when we are moving, I summarize, when we are moving a conductor in a magnetic field with the velocity v, so v and b are given. When the conductor moves in the magnetic field, charges are displaced, polarization हो जाती है, charges पॉजिटिव और नेगेटिव साइन सेपरेट होके एक अलग अलग डायरेक्शंस में हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है. ये कोई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर. And this process of polarization continues until the electric force on the charges. अब वो जो charges पे electric force है वो किसकी वजह से है? उस फील्ड की वजह से जो कि उस कंडक्टर के इनसाइड इंड्यूस हो रही है. एंड द मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसेस ईच अदर, जो कि इसमें क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. सो इस बैलेंस की वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है. सो द मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज कैरियर्स इन अ मूविंग कंडक्टर, एक कंडक्टर को जिसको आप मूव कर रहे हैं, the magnetic force Fb creates an electric field which is E is equals to Vb, and this is the induced electric field inside the conductor. So अब ये जो induced electric field है, this will lead to the potential difference. Potential difference and electric field are correlated. So this induced electric field will give us the induced EMF, or we can say the electric potential. So the potential difference depend upon the strength of the magnetic field and wire speed through the field. देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस विल गिव अस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको क्या देती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देती है. V इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस. यू हैव प्रीवियसली स्टडीड इन द मिड टर्म दैट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो EMF है, that is equals to integral E dot ds. So EMF and electric potential are basically same things. So हमारे पास ये जो EMF इंड्यूस्ड हो रही है, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो कि इंड्यूस हो रही है इनसाइड द कंडक्टर. एंड द EMF इंड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, एंड दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी v एंड द मैग्नेटिक फील्ड b. अगर आपके पास v और b में से आप कोई भी फैक्टर इंक्रीज करेंगे, तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल इंक्रीज. The potential difference depends upon the strength of the magnetic field and the wire speed. So the motional EMF of the conductor which is moving perpendicular to the magnetic field, ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है,
इस पर जो मोशनल ईएमएफ आएगी ये प्रोपोर्शनल होगी V ओवर B के. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस इज बेसिकली VLB. मैं इसको आपको करके दिखा देती हूँ, देखें. We have written that E is equals to V into B. वैसे ही है. अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इन द प्रीवियस लेक्चर्स यू हैड स्टडीड दैट. इसको थोड़ा सा मैं ब्लो कर देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ. Whereas the EMF or the electric potential difference EMF is equals to potential and is equals to E into L. Where L is the length of the conductor. आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो EMF है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आर द सेम थिंग्स, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हमारे पास नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे हम लिखते हैं, आपने इसकी जो इक्वेशन पढ़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट. ये पढ़ी थी आपने बेसिकली इक्वेशन. जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ये इक्वल होती है इंटीग्रल ई डॉट डी एस के. सो अगर हम इंटीग्रेशन के बगैर ये देख लें कि आपके पास जो कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, ई इंटू एल के. सो दिस विल गिव ई इंटू एल, ई इज इक्वल्स टू ई इंटू एल, और ई किसके इक्वल है, वी बी के. तो ये वो इक्वेशन थी जिसे मैंने डायरेक्टली इधर लिखा हुआ था कि E electromotive force is equals to VLB. So the electromotive force or the electric potential which is produced due to the motion of a conductor in the magnetic field is proportional to velocity, length of the conductor and the magnetic field. तो आपने क्या किया है, ईएमएफ इंड्यूस या पोटेंशियल का आपको पता है कि दिस इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस. So E dot ds में if you put the length of the conductor is equals to L, so this will become E into L. And electric field which we have calculated here, that if the electric force on the conductor and the magnetic force on the conductor balances each other, so E becomes V into V. जब आप इन सबको यहाँ पुट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो इक्वल आ जाता है वी एल इंटू वी के. ये देख लें, वी एल इंटू वी के.
तो ये देख लें, मैंने आपने ये डेरिवेशन कर दी है कि ई किसके इक्वल है, वी इंटू बी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर आप इस इक्वेशन से यहाँ पर लेकर आए तो ई इंटू एल आएगा, आप ई की वैल्यू पुट कर दें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, वी एल बी के। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा है कि आपने जब कंडक्टर को मूव किया है, व्हेन यू मूव द कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड and electric field is induced inside the conductor, this induced electric field is different from the electrostatic field। वो जो आपने इससे पहले प्रीवियसली इन द मिड टर्म्स पढ़ा है कि आपके पास अगर एक चार्ज हो तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज different from the electrostatic field because electrostatic field was a conservative field और उसमें क्या होता है कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, लेकिन यहाँ पर ये जो फील्ड इंड्यूस हो रही है दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड, ये एक्चुअली आपके पास उस तरह की फील्ड नहीं है। सो इसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और ये आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होती। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द electrostatic field distribution and the induced electric field. So electrostatic field is the conservative field where work done in a closed path is zero, but the induced electric field is the field which is produced when a conductor is moved in a magnetic field, and this induced electric field is a non-conservative field. So ये बेसिकली मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अभी देखो, द फैक्ट दैट ईएमएफ्स आर इंड्यूस्ड इन द सर्किट इम्प्लाइज दैट, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, जूम कर देती हूँ। The fact that the EMF are induced in circuit implies that work is being done on the conduction electron in the wire। हमारे पास वर्क डन हो रहा है वायर में, अगर आपके पास EMF इंड्यूस हो रही है तो, लेकिन व्हाट इज द पॉसिबल सोर्स ऑफ द वर्क। हाँ, अब ये देखो कि हमने जब ये फेराडेस लॉ का इनिशियल एक्सपेरिमेंट व्हेन आई showed you उसमें क्या था, अ कंडक्टिंग लूप वाज कनेक्टेड टू द galvanometer विदाउट एनी बैटरी एंड अ मैग्नेटिक बार वाज मूव क्लोज द बैटरी। जब आपने उसे उस बैटरी के क्लोज मूव किया सो क्या हुआ, हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस हुई, करंट प्रोड्यूस हुआ। सो ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब तो ये है कि शायद कोई वर्क डन किया जा रहा है उस वायर के ऊपर, बट वर्क डन कैन बी डन बाय द बैटरी, लेकिन बैटरी तो आपने कनेक्ट ही नहीं की। इंडक्शन में बेसिक बात ये है कि आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपको पता है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। दिस इज नॉट डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्क डन नहीं करती है हमारे पास। So the answer is the source of the work is the electric field that is induced in the wire। जैसे अभी कंडक्टर के अंदर आपने देखा कि एक फील्ड इंड्यूस हो रही है, पोलराइज हो रहे हैं चार्जेस और एक फील्ड इंड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ रहा है, ई डॉट डी एल। सो दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट द closed path and this is the induced electric field। So बाकी वही बात है, मैंने इसको रिपीट कर दिया कि द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वेयर एज द अदर फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। in the last शुरू से अगर हम if we start from the beginning, we studied what are the electric charges, what are the charges at rest, so that was the electrostatics। Then we studied what is the electric field, electric potential, and what is the Gauss's law। Gauss's law can also be applied for the moving charges। Then we studied what is the current, what is the magnetic field, what is the force on the moving charges। एक टॉपिक जो मैग्नेटिक फील्ड में से भी हम नहीं कर सके, दैट इज कि अगर हम ये कहते हैं कि एक चार्ज व्हेन अ चार्ज मूव्स, तो उस चार्ज के मूवमेंट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है उसकी भी मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं, वो अगर टाइम हुआ तो मैं आपको करवा दूंगी। सो आपने ये देखा कि एक चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है इफ इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अ करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सो फिर हमने देखा लेंज़ेस लॉ में और फेराडेस लॉ में कि इफ
A changing electric field, yani a current carrying wire has a magnetic field around it. So a changing magnetic field can also produce the electric field. So here in the today's topic, we have also seen that if a conductor is moved in the magnetic field, so जब conductor move करता है magnetic field में, सो क्या होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस विल लीड टू द इंड्यूस current. So all this was under the umbrella of electromagnetism. Initially electric forces, electrostatics and magnetism was studied separately. लेकिन लेटर ऑन फेराडेज लॉ के बाद और बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये मतलब ऑब्जर्व किया गया कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दे कैन नेवर बी सेपरेटेड. इफ देयर इज सम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर मस्ट बी सम, यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को आप अलग नहीं कर सकते. ये दोनों एक ही मतलब जैसे यूनिफिकेशन थ्योरी में जो अब्दुल सलाम ने किया था, दो फोर्सेस को कंबाइन किया था. सो बेसिकली इस यूनिवर्स में बहुत सारी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं. इन सारी जो फोर्सेस हैं इनको बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम क्या कर दें, कंबाइन कर दें एंड वी कैन सी कि आपके पास ये जो यूनिवर्स है इसको कोई एक ही फोर्स ड्राइव कर रही है, रन कर रही है. सो ये जो मैक्सवेल था इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस सारी स्टडी को जो आपने की है उस सबको कुछ इक्वेशंस में समराइज कर दिया था एंड दैट आर कॉल्ड एज मैक्सवेल इक्वेशंस. अगर आप समराइज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, जिनमें से ये लास्ट इक्वेशन जो है ये हमने नहीं पढ़ी जो एम्पेयर्स लॉ की थी, क्योंकि मैं लेक्चर्स बहुत सारे बीच में टॉपिक्स जो है वो छोड़ के, ताकि हम ऑप्टिक्स का जो इस दफ़ा नया पोर्शन इंक्लूड हुआ है उसे कवर कर सकें. सो फर्स्ट इक्वेशन इज द गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. लास्ट स्लाइड नहीं शो स्लाइड शो हो रही है, मैं रिपीट कर देती हूँ. ये देखो अब शो हो रही है. यस मैम. So this Maxwell equation, these Maxwell equations describe the whole electromagnetism. First equation was about the electrostatic, यानी Gauss's law for electrostatics. ये E dot dA is equals to Q over epsilon naught. Second equation is B dot dA is equals to 0. अब ये देखो ये है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म. गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में आपने ये शायद पढ़ा हुआ पहले कि हमारे पास E डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, कि अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है विच एनक्लोजेस सम चार्ज, तो आपके पास जो फ्लक्स आता है यानी E डॉट डी ए की क्या आती है, कोई मैग्नीट्यूड आती है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आता है E डॉट डी ए, यानी द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज सम नॉन जीरो वैल्यू. लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट डी इज इक्वल्स टू जीरो का मीनिंग ये है कि आपके पास मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते. जब भी आपके पास कोई मैग्नेट होगा किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो आपके पास जो टोटल फ्लक्स आएगा बी डॉट डी ए इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ये क्या है, ई डॉट डी ए इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज क्यू इज ओवर एप्सिलॉन नॉट, एक नॉन जीरो वैल्यू है. अगर चार नॉन जीरो है तो आपके पास एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है. बी डॉट डी ए क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, बट दिस इज ऑलवेज जीरो एंड दिस जस्टिफाइज दैट कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं. आपके पास जितना भी टाइनी मैग्नेट हो, द इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ टाइनी मैग्नेट, लेकिन उसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा. आप नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते. तो ये जो बी डॉट इज इक्वल्स टू जीरो है, यही शो करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है. यानी आपके पास जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसके फ्लक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते. जब भी आप एक क्लोज सरफेस लेंगे तो वहां पर जितना भी टाइनी मैग्नेट हो, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के फ्लक्स को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे. सो जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज लूप, दिस विल बी ऑलवेज जीरो. और जो थर्ड इक्वेशन है वो रिलेट करती है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को आप रिलेट करते हैं फेराडेज लॉ से, कि आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू डी फाई ओवर डी टी. ये थर्ड इक्वेशन क्या है, फेराडेज लॉ. लास्ट इक्वेशन है एम्पेयर्स लॉ, जो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन एम्पेयर्स लॉ बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि करंट कैरिंग वायर अगर हो तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर आई करंट जो है उसमें फ्लो कर रहा है और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ये एम्पेयर्स लॉ है. सो दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज फॉर मैग्नेटिज्म. This is again the relationship of electromagnetism. कि changing magnetic field produces the electric field, and the last is the Ampere's law, which shows that changing electric field produces the magnetic field.